Aquí la quema de banda. आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एड करके लड़के जो है ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप कंटिन्यू करते हैं। सर जी आवाज़ दे सफ़ा नाराजी सर। सफ़ा नदर जी ना सर आवाज सफा ना दे विशी स्लो दा नो सर इसका उसम स्लो है। मोहम्मद कामरान is saying sound is okay. सही बस खुश होगी, सही ओके। लेक्वेट तो चिनोरा लकान ज्वाइन की वजह से कम लेता है स्टार्ट तो सही था लेक्चर स्टार्ट हो अदी के साल लकान की चेरी तजल द हुकूमत चेरी की कम खपल आइडिया नहीं च कम ले सही की लेकिन यो एहसानुल्लाह दे with यूबी अकील बादशाह उजैर खान नवीद खान सऊद फटक जुबैर खलील सफीर हुसैन समीउल्लाह ये लड़के जो है अपनी आईडी जो है ठीक कर ले ताकि उनकी अटेंडेंस जो है मेरे पास आती रहे। अस्सलामुअलैकुम सर, आवाज़ क्लियर नहीं थी सर। लगो आपका नेट का मसला होगा क्योंकि कुछ लड़कों को दो से लड़कों जो है बाकी लड़कों को जो है आवाज़ ठीक आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा जो है नेट को चेक कर ले अपना। सर आवाज स्लो है सर, दे कमरा के रहता भी आवाज सर ले तमास के तब नमाज सर नेट सही दे वो नूर लकान काइंडली नूर चेक करिए सर सर आवाज लरे कराई تاسو انفي لګولي سر نو مایک لګولي फुल स्क्रीन अभी मैंने क्लिक किया था जो शेयर
دا شي درځي او بس صحیح ده کنه دا سر سٹارټ دا لږ څه وخی چې د خپل ایډي په ټول کې صحیح دی که نه دی دې ته خو په ګرانه کې بل نه کوس داس کار کوي نه دا نه ښکاري او تاسو پورا سکرین بس کې باندې چې ساوي لري بیا وو نو سره نوټس کې نه راځي نو ستدل نو اوپن کړه دا چې څه زوره سي دا یو اوپن کوو هغه ته باندې هغه ته بل او خلاص کوم سر جی تاسو आवाज ډیر د لري نه راځي سر دا مایک لګ نږدې کړئ او صحیح ده او جی سر سټیک شو او جی صحیح ده سوال موالي دغه کې کوئی چیټ کې تاسو کوي ټول چې کوم دی خپل مایک مان کوي بیا چې کوم دی مثلا سټینډینګ راځي ماتم صحیح سوال دغه نه راځي सर जी बस बिस्मिल्लाह का सर शुरू कर सर صحیح ده سٹارټ کوو دا شو الکان دي استخار د پریزنټینګ تاول سٹارټ ہوتا آف خپل پریزنټینګ علاقہ بند کرا پریزنٹنگ کرنا اچھا یہ جو آپ لسٹ دیکھ رہے ہو جن کے سامنے کویشچن مارک آ رہے ہیں انہوں نے جو ہے اپنی آئی ڈی جو ہے چیک نہیں کی ٹھیک ہے اپنی آئی ڈی جو ہے ٹھیک کر لیں یہ جس سر اوپر دیکھے جو ہے نام ہے اس کے سامنے جو ہے آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس طرح اپنی آئی ڈی یا نیم جو ہے چینج کر دیں تاکہ آپ لوگ اکیلے جو ہے میرے ساتھ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ٹھیک ہے آج کا لیکچر جو ہے سبجیکٹ جو ہے ہمارا وہ ڈیزائن آف ہائیڈرولک اسٹرکچرز ہے ٹھیک ہے بی ٹیک 7 پلیٹ ٹاور اس کے 3 ہے ٹھیک ہے اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 1 ٹھیک ہے لیکچر نمبر لیکچر نمبر 2 ہے ٹھیک ہے لیکچر نمبر 1 جو ہے منڈے کو جو ہم نے کور کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 ٹھیک ہے اچھا فرسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا لیکچر نمبر 2 میں وہ ہے ویئر کیا ہے if the major part of the entire bonding of water is achieved by a raised crust and a smaller part of it's achieved by a shutter then this barrier is known as weir ٹھیک ہے جس طرح پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ ویئر جو ہے کیا ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس ریس کرسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ریس کرسٹ ہوتی ہے اور اس کے تھرو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں بانڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ریسٹ اور کچھ جو ہے کچھ بانڈنگ جو ہے ہم بانڈنگ کے لیے ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے شٹر بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس سائڈ سے جو ہے ہمارے پاس واٹر جو ہے فلو کر رہا ہے ٹھیک ہے سامنے جو ہے ہم نے ایک بیریئر سر کنسٹرکٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس پانی جمع ہو ٹھیک ہے آگے اگر ہم ایکسٹرا بانڈنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم شٹر لگا دیں شٹر مینس ہے اسٹیل کے جو ہے یا لکڑی وغیرہ کے گیٹ جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے انسٹال کر لیتے ہیں اسے ہمارے پاس ایکسٹرا بانڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے so the barrier which is used for bonding of water is known as weir ٹھیک ہے یہ اس کا کچھ جی کسی کا کوئی کویسچن ہے سر جی आवाज هم ډیر سلو راځي زه پته ځلا کې ما پوښ یو چې کوم دی ما دا اوس مثلا نه کاری پوښ سر جی صحیح ہے سر جی سر جی میک سر جی میک لګیږي کی سر ځان سر جی فونډا نه ما کون کړه غاندي و شور راځي سر جی ملم تاسو आवाज کلیر مو درځو دا شور بګی مایک اور شور دی راځي سر جی مایک کې شور درځي دا چې فونډا نه ما کون کړه کنه سر جی ای وځي صحیح راو نه رحیم زما आवाज کلیر ده کنه ده کلیر سر تاسو اوس ما کلیر ده سر به کلیر ده تاسو आवाज اور رساله غانو تکلیر دي نو مطلب دا چې دا چا تکلیر نه دي دا خپل د رنټ مسله ده ٹھیک شو ما مایک خولې د نیولې ده بالکل ٹھیک ہے زما ما आवाज څنګه سلو ده سر سټوډنټ ته ریکوست وکړئ چې دا خپل ټول سټوډنټ مایک آف کی سر جی اوس کلیر شو سر
एवरीवन स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज। अपने माइक जो है वो बंद कर ले सारे लड़के। अमानुल्लाह तो खुला कैमरा बंद कर यार। कैमरे को छोड़े जो है सारे लड़के बातें ना करें, ठीक है। माइक जो है वो ऑफ कर ले और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो है चैट में पूछ लिया करें। टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। वियर है हमारा जो है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि वियर जो है हमारे पास जो है स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है हम सॉलिड कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके थ्रू जो है हम वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है। वाटर को स्टोर करते हैं, पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और उसको अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए फिर उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसमें से जो हम थोड़ा सा जो क्रस्ट लेवल होता है, ठीक है, उसको हम रेस्ट कर लेते हैं। उससे जो है हमारे पास जो है वाटर जो है जमा होना शुरू हो जाता है, पॉन्डिंग उसकी शुरू हो जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है स्टील के गेट्स या लकड़ी के गेट्स वगैरह इंस्टॉल कर, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है पॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। और इसको फिर हम अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो वियर आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें हम सॉलिड कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके थ्रू जो है पॉन्डिंग को अचीव करते हैं, ठीक है। उसको फिर अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए यूज करते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो है जर्नल डायग्राम होती है, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो हम अपने जो हमारा जो यहाँ पर जो थ्रस्ट लेवल है उसको हम रेस कर लेते हैं, ठीक है। जब रेस करते हैं तो पानी यहाँ पर आके जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पानी स्टोर होता है तो उसका जो है लेवल जो है राइज हो जाता है। जब लेवल राइज हो जाता है तो उसको फिर हम अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ टाइप्स है हमारे पास वियर्स के, तो उसमें है ग्रेविटी वियर है और नॉन ग्रेविटी वियर, ठीक है। ग्रेविटी वियर कौन से होते हैं? When the weight of the weir, that is its body and floor, balances the uplift pressure caused by the head of the water seeping below the weir, it is called a gravity weir, ठीक है। वो वियर जो हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस करे, ठीक है, अपने वेट के साथ, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर के नीचे जो सीपेज हो रही होती है उसकी वजह से हमारे साथ जो है स्ट्रक्चर के ऊपर अपलिफ्ट प्रेशर लगता है, ठीक है। सो वो स्ट्रक्चर जो अपने वेट के हिसाब से इस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ग्रेविटी वियर्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है आफ्ताब अहमद का कि पॉन्ड लेवल का क्या मतलब? पॉन्ड लेवल मींस कि आपके पास जितनी हद तक जो है स्टोरेज होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ तक जो है हमारे पास यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है आफ्ताब, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हमारे पास पानी स्टोर हो रहा है तो उस लेवल को कहते हैं पॉन्ड लेवल। क्लियर है? इमरान खान का क्वेश्चन है ग्रेविटी और समझ नहीं आई, ठीक है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ग्रेविटी वियर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने वेट के हिसाब से जो है फोर्सेस को, अपलिफ्ट प्रेशर्स को जो है बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ग्रेविटी वियर्स कहलाते हैं। मींस जब हमारे पास जो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है हमारे पास सीपेज होते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे सीपेज के यूज में, अगला हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, कि हम जब स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके नीचे से जो है हमारे पास सीपेज होती है। एज ए रिजल्ट उस सीपेज की वजह से हमारे पास स्ट्रक्चर के नीचे से जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है लगता है। साथ ही साथ जो है ये उसको ओवरटर्न करने की भी या उसके अंदर जो है पाइपिंग भी जो है कॉज करता है, ठीक है। पाइपिंग के जो है वो अब नीचे से जो है मिट्टी को ले जाता है अपने साथ, जो सीपेज वाटर है, एज ए रिजल्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन में जब आंसर करूँ फिर जो है पूछ लिया करें जो है, या चले मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको समझ ले ताकि जो अगर उसमें भी समझ आए तो उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया करें, ठीक है। तो हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है तो वो अपने वेट से उसको जो है बैलेंस करता है। अपलिफ्ट प्रेशर अभी अमित अयूबी ने कहा अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है, तो सीपेज जब हमारे पास होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर के नीचे से जो पानी जाता है, ठीक है, हम जब पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, और पक्तो के होता है विद एग्जाम तेरा होते हैं, ठीक है, टिंके ना यार टिंके ना होने से पहले ठीक शो पहुंचे कल हर स्ट्रक्चर तो जोड़ के लगा डैम तो जोड़ के
هغه سره اخوا کې په کومې د علاقې دي کې زم راشي ٹھیک شو نو دې ته وایي سی پیج د دې سی پیج د وایي په سټرکچر باندې اپلیفټ پریشر لګي ٹھیک شو اپلیفټ پریشر لګي هم ور سره چې کوم یو بل فیلور کې هغه ته وایي پایپینګ دا سی پیج څه کوي دا لاندې نه په سټرکچر باندې ستا پریشر اپلای کوي هغه ته وایي اپلیفټ پریشر ٹھیک شو هغه د وایي ستا چې کوم سټرکچر دی هغه اورټرن کیږي ٹھیک شو ورسره چې کوم نه دا چې کوم نه د سی پیج واټر د لاندې سټرکچر نه چې کوم دی خور ځان سره هم روانه کړي بل سایډ ته وباسي نو چې هغه وجه لاندې زم سره خالی پاتې شي ایز ا ریزلټ زموږ سټرکچر چې کوم نه اورټرن شي دا به تاسو مخ کې لیکچرز کې کلیئر شي دی باندې تاسو پورا ټاپک ته صحیح شو نو صرف دومره صرف لیکچر د کلیئر کې صحیح شو د خپل کنسپټ نو ان شاء الله دا کلیئر صحیح شو نو گریویٹی ویئرز هغه ویئرز دي کوم سره چې کوم वो ویئرز ہے हमारे पास ग्रेविटी ویئر जो अपने वेट के हिसाब से जो है उस अपलिफ्ट प्रेशर को जो है बैलेंस करें तो ऐसे व्हील्स को कहते हैं ग्रेविटी व्हील्स क्लियर हो गया थोड़ा बहुत मोइन अशरफ जी मैं अभी आंसर कर रहा था इसलिए मैंने जो है पावर पॉइंट को जो है नीचे किया था इसलिए आपको शो नहीं होता अभी शो हो रहा है मोइन अशरफ जी सर सही है सर ओके अच्छा जुनेद सर जी मंडे पे औरज क्लास में न दे अबस्ते जरूर क्लास वाला यो लेक्चर में करने दे छवे जुनेद खान चिकम ने मां चिकम लेक्चर अबस्ते दागे मां पे YouTube अपलोड करे दागे लिंक कौन ग्रुप की शेयर छवे दे आगे लिंक पाने क्लिक किता सुबह लेक्चर आगे न गो रही सही ना और आगे सर सर बस पे वॉइस ओवर होम वीडियो जोड़ो अगर ता सुबह करते सही ना जुनेद खान जी हुआ है सब क्वेश्चन में सवाल नहीं जीशान खान चैनल लिंक चैनल लिंक तेरा पता ग्रुप के शेयर शेयर है सही ना वाजिद अली अपलिफ्ट प्रेशर चेक करने में ऑलरेडी एक्सप्लेन को चेक करने थे कलम सर सी पिच की सही जो स्ट्रक्चर लाने नगा सी पेज द वजह लाने ना द स्ट्रक्चर चिकन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दे सरा बियर दे बैराज दे डैम ने ठीक छो आगे न लांदे चिकन ने पागा स्ट्रक्चर में प्रेशर लगी आगा प्रेशर तो वही अपलिफ्ट प्रेशर मत के भी इंशाल्लाह मुगा दवाई नु तो बिया क्लियर सी सही ना सिर्फ दा उस दो जहन के वजह से स्ट्रक्चर लाने लगी सही छो बिकॉज़ ऑफ सी पेज वेलकम जी उसके बाद है नॉन ग्रेविटी वेयर ऑन द अदर हैंड इफ द वेयर floor is designed continuous with the divide piers as reinforced structure such that the weight of the concrete slab together with the weight of divide piers keep the structure safe against the uplift then the structure may be called as non-gravity weir सिंपल है कि नॉन ग्रेविटी वेयर जो है हमारे पास वो स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने स्ट्रेंथ से जो है अब आपके जो अपलिफ्ट प्रेशर है सीपेज की वजह से उसको जो है बैलेंस करें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं नॉन ग्रेविटी वेयर मींस के ऐसे वेयर्स में जो है हम प्रॉपर्ली जो है पियर्स वगैरह को डिजाइन करते हैं स्लैब्स को डिजाइन करते हैं उसका जो वाटर को जो रिटेन कर रहा है वो उसको प्रॉपर्ली आरसीसी डिजाइन करते हैं ठीक है सो ऐसे वेयर्स को कहते हैं नॉन ग्रेविटी वेयर्स और इनकी जो है थिकनेस भी वगैरह भी कम होती है क्योंकि उसको हमने प्रॉपर्ली डिजाइन किया होता है ठीक है इन द लेटर केस आरसी इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ब्रेक वेयर्स जैसा शुरू में हमने कहा कि ग्रेविटी वेयर्स में जो है अपने वेट के हिसाब से वो जो है वेट को जो है जो अपलिफ्ट प्रेशर है उसको बैलेंस करता है ठीक है जबकि नॉन ग्रेविटी वेयर में जो है हम प्रॉपर आरसीसी स्ट्रक्चर्स को जो है डिजाइन करते हैं तो वो अपने डिजाइन के थ्रू जो है उन अपलिफ्ट प्रेशर्स को जो है बैलेंस करता है considerable swell may be obtained as the weight of the floor can be much less than that what is required in gravity wear ठीक है so clearly जब आप उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करेंगे तो आपके पास थिकनेस वगैरह फ्लोर की थिकनेस पियर्स वगैरह जो उसका डिजाइन सब कुछ जो है कम आएगा तो आपके पास जो है उसकी थिकनेस वगैरह कम होगी ठीक है तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को नॉन ग्रेविटी वेयर्स कहते हैं उसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक है अगला टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ वेयर तो ये टाइप्स ऑफ वेयर जो है ये जो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हो गया ठीक है और ये जो है अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेयर्स है
मैसनरी से है, रॉक से है और कंक्रीट वगैरह से, डिफरेंट टाइप से, ठीक है। सो ये डिफरेंट उससे जो है हमारे पास ज़हीन खान लास्ट सेंटेंस में, ओके। Last जो sentence है, considerable saving may be obtained as the weight of the floor can be much less than what is required in gravity weight, ठीक है। ज़हीन खान हमारे पास जो है जो नॉन ग्रेविटी वियर है, इस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि उसको हम प्रॉपर्ली जो है डिजाइन करते हैं, ठीक है। जब हम उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं तो इस रिजल्ट आपके पास जो आप फ्लोर लगाएंगे, ठीक है, और साइड के ऊपर, तो उसकी थिकनेस भी कम होगी क्योंकि आपने उसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया होगा सीसी। साथ ही साथ उसके पियर्स वगैरह भी, साथ ही साथ जो बैरियर आप कंस्ट्रक्ट करोगे वाटर को रिटेन के, तो उसको भी आप प्रॉपर्ली डिजाइन करोगे तो उसकी थिकनेस जो है कम होगी। तो आपके पास जो सेविंग है वो आपके पास जो है, एज ए रिजल्ट आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग होगी, ठीक है। जबकि नॉन ग्रेविटी वेव के केस में जो है आपने क्योंकि उसको डिजाइन नहीं किया होता, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होते, सिंपल आप ब्रेक से बनाते हो या जो है दूसरी चीजों से बनाते हो, ठीक है। तो ब्रिक से बनाते हो या स्टोन से बनाते हो या सिंपली कंक्रीट से बनाते हो, उसको डिजाइन नहीं करते, तो सिर्फ आप आके कंक्रीट डालते हो तो उसमें जो है आपके पास पता नहीं चलता कि आज ये लोड को जो है सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बस आप आके कंक्रीट डालते हो, उसमें जो है आपके पास इतनी सेविंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है टाइप्स है, तो टाइप्स में हमारे पास मेसनरी वियर है, रॉक फिल वियर है और कंक्रीट वियर, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है मेसनरी वियर विद वर्टिकल ड्रॉप, ठीक है। टाइप ऑफ वियर है, तो इसमें जो है ये क्या होता है उसको पढ़ते हैं। मेसनरी वियर वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द इम्परवियस फ्लोर, ठीक है। ये जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इम्परवियस फ्लोर के ऊपर, ठीक है, मेसनरी से। कट ऑफ वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द फ्लोर, इसके ऊपर जो है हम बोथ साइड पे कट ऑफ वॉल जो है प्रोवाइड करते हैं। ये एक कट ऑफ वॉल ये है, इधर में नजर आए, दूसरा ये है, ठीक है। कट ऑफ वॉल क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि आपके पास जो है सीपेज कम से कम हो, ठीक है, या सीपेज के फ्लो को जो है ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। शीट पाइल्स आर प्रोवाइडेड बिलो द कट ऑफ वॉल्स, ठीक है। इनके साथ जो है नीचे जो है शीट और पाइल जो है, तीन पाइल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको जो है शीट पाइल कहते हैं। इस केस में शो नहीं की गई है, लेकिन के साथ जो है ये कट ऑफ वॉल के साथ जो है नीचे यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। तो रिजल्ट यहाँ पर आपके पास जो सीपेज यहाँ से हो रही है तो वो उसके पाथ को जो है ब्रेक करता है, रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर जो है सेफ रहता है, ठीक है। द क्रश शटर्स आर प्रोवाइडेड टू रेज द वाटर लेवल, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये वियर वॉल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है क्रश शटर जो है अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मल केस में आपके पास यहाँ तक पॉन्डिंग हो, जब आप क्रश शटर लगाते हो तो उसके ऊपर साथ आपके पास पॉन्डिंग लेवल जो है बढ़ जाता है, रिजल्ट आपके पास एक्स्ट्रा पॉन्डिंग होती है, ठीक है। द शटर्स आर ड्रॉप ड्यूरिंग फ्लड, ठीक है, फ्लड के दौरान जो है शटर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उसको अपने साथ ना ले जाए, बहा ना ले जाए, ठीक है। द मेसनरी वियर वॉल में बी वर्टिकल ऑन बोथ द फेसेस और स्लोपिंग ऑन both faces or vertical or downstream face and sloping in upstream face, ठीक है। जो मेसनरी वियर है, वियर वॉल है, तो वो तो या बोथ साइड पे जो है वर्टिकल हो सकता है, ठीक है, या स्लोपिंग भी हो सकता है, मींस के इस तरह जो है स्लोप भी दिया जा सकता है दोनों साइड पे, या एक साइड पे जो है स्लोप और दूसरे साइड पे जो है स्ट्रेट रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मेसनरी वियर्स है। कट ऑफ इन द डायग्राम, ये जो आपके पास जो है ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ, ये कट ऑफ है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम साइड पे कट ऑफ है, ये जो स्ट्रक्चर सा है ये कट ऑफ, इसको कहते हैं कट ऑफ वॉल, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे जो है पाइल शीट जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। क्लियर है वाजिद? अब्दुल जलील वियर्स, तो वियर्स जो है हम अभी शुरू से जो है, कल भी हम पिछली क्लास में हमने उसमें पढ़ा था वियर्स के बारे में, ठीक है, और अभी भी हमने जो है वियर्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, कि वियर्स क्या है। हमारे पास सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है जिनको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर पॉन्डिंग ऑफ वाटर, ठीक है, या स्टोरिंग ऑफ वाटर के लिए। वाजिद अली का क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कट ऑफ। सर कट ऑफ, जिस तरह मैंने कहा कि ये कट ऑफ वॉल जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनके साथ जो है शीट पाइल जो है कनेक्ट किए जाते हैं। ये जो है यहाँ से जो आपके पास सीपेज हो रही होती है, सीपेज की पाथ को ब्रेक करने के लिए जो है हम कट ऑफ वॉल और शीट पाइल जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास जो सीपेज है उसी वजह से आगे हमारे पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है क्रिएट होता है और अपलिफ्ट प्रेशर की वजह हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका कोलैप्स होने का खदशा होता है। इसलिए जो है हम शीट पाइल जो है कट ऑफ वॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके नीचे जो है शीट पाइल जो है प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जो टाइप है वो है रॉक फिल वियर विद स्लोपिंग एप्रन्स। ठीक है, so rock fill weir is with sloping apron. It consists of masonry breast wall which is provided with adjustable crush shutter। ठीक है, ये जो है हमारे पास कंसिस्ट होता है masonry breast wall। ठीक है, ये जो है आप फिगर में देख रहे हो इसके अंदर जो है एक masonry breast wall जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके ऊपर जो है शटर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और एक्स्ट्रा बॉन्डिंग। The upstream rock fill portion is constructed with boulders forming a slope of 1 in 4। ठीक है, जो अपस्ट्रीम साइड है यानी कि अगर फ्लो आपके पास इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास अपस्ट्रीम साइड, तो इस साइड पे आपके पास जो है रॉक फिल जो है स्लोप दिया जाता है। ठीक है, 1 in 4। ठीक है, 1 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये जो है स्टोन बोल्डर से जो है ये जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये पोर्शन जो है ये बोल्डर्स आर ग्राउंडेड विद सीमेंट मोर्टर। ठीक है, यहाँ पर जो है इन जब बोल्डर लगाए जाते हैं इनके अंदर ऊपर जो है सीमेंट मोर्टर का पेस्ट डाला जाता है ताकि ये जो है को कनेक्ट कर सके। ठीक है, The downstream sloping apron consists of core wall। जबकि डाउनस्ट्रीम साइड पे जो है इनका एक कोर वॉल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, The intermediate spaces between the core wall are filled up with boulders maintaining a slope of 1 in 20। और इनके जो दरमियान में जो जगह है, ठीक है, इनको जो है स्टोन मेसनरी से जो है फिल किया जाता है। ठीक है, इनको जो है स्टोन मेसनरी से फिल किया जाता है। इनको जो स्लोप दिया जाता है वो कितना, वो जो है 1 in 20 जो है स्लोप दिया जाता है। ठीक है, ये बोल्डर्स आर ग्राउंडेड प्रॉपर्ली विद सीमेंट मोर्टर। और इस साइड पे भी जो है इन स्टोन्स को जो है ग्राउंड किया जाता है सीमेंट मोर्टर से। अगला है कंक्रीट वियर। कंक्रीट वियर नाउअडेज द वियर इज कंस्ट्रक्टेड विद रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। नाउअडेज जो है हमारे पास ये जो है सीमेंट कंक्रीट से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अच्छा, वर्टिकली का क्वेश्चन है 120 मींस के 1 जो है आप वर्टिकल जाएंगे तो 20 जो है आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे। ठीक है, 1 in 20 का मतलब ये है। ठीक है, ब्रेस्ट वॉल जो है आपके पास मेन वॉल होता है, उनको जो है ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। ठीक है, ये मेन वॉल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके साइड पे जो है बोल्डर जो है लगाए जाते हैं, उनको सीमेंट मोर्टर से जो है ग्राउंड किया जाता है और इस मेन वॉल को कहते हैं मेसनरी ब्रेस्ट वॉल। क्लियर है सही? कोर वॉल का जो फंक्शन है ये आपके जो है स्टोन्स को जो है अपनी जगह पे पकड़े रखता है। ठीक है, और ये आपके जो स्ट्रक्चर है उसको जो है मजबूत करता है, कोर करता है। ठीक है, बोल्डर्स मींस कि आपके पास जो स्टोन है, स्टोन बोल्डर्स जो आप स्टोन लगाते हो, बड़े बड़े स्टोन, उसको स्टोन बोल्डर्स कहते हैं। नातुल्ला स्टोन जो ब्रेस्ट वॉल है, ठीक है, ब्रेस्ट वॉल ये जो है मैंने जिस तरह ये आपका मेन वॉल होता है। ठीक है, ये जो है मेसनरी से जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके इर्द गिर्द जो है स्टोन बोल्डर्स लगाए जाते हैं और इनको जो है प्रॉपर स्लोप दिया जाता है। जिस तरह फिगर में आप देख सकते हो 1 in 4 इंच जो है अपस्ट्रीम साइड पे दिया जाता है और 1 in 20 जो है डाउनस्ट्रीम साइड पे दिया जाता है। ठीक है, और इस जो मेन वॉल है इसको कहते हैं ब्रेस्ट वॉल। इसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है लोड जो है ज्यादातर लोड जो है आपका ये मेन वॉल लेता है। ये मेन वॉल इसको कहते हैं ब्रेस्ट वॉल। ठीक है, और इसके ऊपर जो है क्रशर जो है लगाए जाते हैं और यहाँ पर जो है आपके पास बॉन्डिंग होती है। अच्छा, कंक्रीट वियर है। उसके बाद nowadays the weir is constructed with reinforcement concrete, the impervious floor and the weir are made monolithic। ठीक है, आजकल जो है जो
वियर है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिइंफोर्समेंट कंक्रीट से, ठीक है। और उनका जो फ्लोर है, फ्लोर के साथ जो है ये मोनोलिथिकली क्रॉस किया जाए। मोनोलिथिकल मींस के ये जो है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो है वियर वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसका फ्लोर भी एक ही टाइम इसकी कंक्रीटिंग जो है की जाती है। तो एक ही टाइम पे जब आप कंक्रीटिंग करते हो, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हो, तो उसको कहते हैं मोनोलिथ। The cut off wall are provided at the upstream and downstream end, ठीक है। यहाँ पर देख ले, अब कट ऑफ वॉल जो है अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड पे जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। शीट पाइल्स आर प्रोवाइडेड बिलो द कट ऑफ वॉल, और साथ ही साथ जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि कट ऑफ वॉल के नीचे जो है आपके पास शीट पाइल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कट ऑफ वॉल है, इसके साथ ही जो है शीट पाइल जो है प्रोवाइड की गई है। The crushed shutters are also provided which air drops down during the flood, ठीक है। साथ ही साथ जो है क्रश शटर भी प्रोवाइड किए जाते हैं और इनको जो है ड्यूरिंग द फ्लड जो है ड्रॉप कर दिया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है मोहम्मद बिलाल का कि 1.4 क्यू और 1.5 क्यू है, दोनों सेम क्यों नहीं है? बिलाल जो है आपने क्वेश्चन पूछा कि 1.4 और 120 क्यू है, सेम नहीं है, तो ये जो है आपके पास डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो है इसलिए, और आपके पास जो अपस्ट्रीम साइड है इसके ऊपर इसलिए कम भी है, एक रीजन ये भी है कि आपके पास जो है उस साइड पे जो है आपके पास पॉन्डिंग होनी है, ठीक है। पॉन्डिंग होनी है, वाटर ने स्टोर होना है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो है स्लोप कम प्रोवाइड किया ताकि आपके पास पानी जो है ज्यादा जमा हो, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम साइड पे जो है स्लोप इसलिए ज्यादा प्रोवाइड की गई है ताकि आपके पास जो है स्ट्रक्चर की सेफ्टी को भी इंश्योर करे, और ठीक है, और पानी जो है इसीलिए उसके ऊपर जो है फ्लो कर सके। क्रश शटर जो है बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि ये जो है स्टील के या वुड के गेट्स होते हैं, ठीक है, जो वियर के ऊपर जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ वाटर हो या एक्स्ट्रा पॉन्डिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वो आज अच्छा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बैराज। बैराज क्या है? If most of the ponding is done by gates and a smaller part of it is done by raised brush, then the barrier is known as barrage or a river regulator, ठीक है। बैराज क्या है? हमारे पास वो स्ट्रक्चर जिनके अंदर हमारे पास जो स्टोरेज हो वो गेट्स के थ्रू, ठीक है, या पॉन्डिंग जो है जो हो वो गेट्स के थ्रू, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बैराज, ठीक है। इसको जो है रिवर रेगुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास जो है पानी जो है फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो इसके सामने जो है यहाँ पर जो है कंक्रीट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके ऊपर जो है दूसरा आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पियर्स वगैरह, और उसके अंदर जो है गेट्स जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, और उसके ऊपर जो है उसका फंक्शन जो है फंक्शन के लिए उसके जो है लीवर वगैरह जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो वहां से जो है आपके पास जो है उसको आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है, कि अगर आपने जो है उसको नीचे करना है ऊपर करना है, आप वहां से उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो यहाँ से आपके पास पानी आता है, जब आपको पानी चाहिए होता है तो आप गेट क्लोज कर देते हो, जब आपको पानी नहीं चाहिए होता है तो आप गेट्स को ओपन कर देते हो, ठीक है। तो इस रिजल्ट आपके पास जो वाटर है तो वो दूसरी साइड पे जो है चला जाता है, ठीक है। अयाज अली आपका क्वेश्चन है स्पिलवे। स्पिलवे किधर है टॉपिक में? स्पिलवे तो डैम्स में होता है, यहाँ पे स्पिलवे किधर है? मोहम्मद बिलाल, डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बैराज हम ऑलरेडी जो है पिछली क्लास में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि वियर में हमारे पास जो है सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, बैरियर होता है, उसके अंदर जो है गेट्स इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है। जबकि जो बैराज है उसके अंदर हमारे पास सॉलिड कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है। हम जो है फ्लोर लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पियर्स या पियर शाफ्ट जो है इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर जो है स्लैब लगा के उनके अंदर जो है गेट्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आपके पास जो स्टोरेज ऑफ वाटर हो वो
जो है आपके पास गेट्स के थ्रू हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं बैराज। अगर आपके पास जो है आपने कोई बंद लगाया है या कंक्रीट की कोई दीवार लगाई है और उसके थ्रू आप पॉन्डिंग कर रहे हो या स्टोरेज ऑफ वाटर कर रहे हो तो उसको कहते हैं वियर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वाजिद अली आपका क्वेश्चन है इज इट स्टोन द बैराज। मुझे आपकी ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई, काइंडली दोबारा पूछें। स्टोरिंग का जो है बैराज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो तो जो है पानी का जो है यहाँ पर जहाँ पर आपके पास जो बैराज है, ठीक है, तो वहाँ जहाँ पर आप बैराज को जो है इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पर आपके पास जो फ्लोर है तो आप वहाँ कम्प्लीटली उसके ऊपर जो है कंक्रीट फ्लोर लगा दो, जिस तरह फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप कंक्रीट फ्लोर लगाए तो वहाँ पर तो आपके पास स्टोरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी जहाँ से पानी आपके पास फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपने जगह पुख्ता नहीं है, हार्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है आपके पास स्टोरिंग होगी। क्लियर है? अच्छा, आगे है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एफ्लक्स। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एफ्लक्स क्या है। अच्छा, आफ्ताब का क्वेश्चन है मोहम्मद बिलाल, बैराज में हम स्लोप क्यों नहीं देते जैसे कि वियर में देते हैं, ठीक है। बैराज में भी हम जो है थोड़ा बहुत जो है स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिगर में देख लें, ठीक है, ये यहाँ पर जो है हमारे पास जो है गेट्स इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इस फिगर में इस केस में ये फ्लैट है। अगर आपको जो है एक्स्ट्रा होने चाहिए होते तो यहाँ पर आप इसको जो है थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करके वियर सा जो है कंस्ट्रक्ट कर लें और उसके ऊपर जो है आप जो है अपने गेट्स को इंस्टॉल कर, उसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा फंडिंग होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आपके जो है डिजाइन के ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है मोहम्मद बिलाल। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैराज एंड वियर। आफ्ताब अभी से पहले जो है मोहम्मद बिलाल ने भी एक क्वेश्चन पूछा और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। ये हमारे पास जो वियर है, ठीक है, जो हमारे पास जो वियर है तो उसके अंदर हमारे पास सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। सॉलिड कंस्ट्रक्शन मीन कि उसके अंदर आप जो है प्रॉपर जो है कंक्रीट की या स्टोन की या ब्रिक्स की मैसनरी की जो है एक दीवार सा जो है बैरियर सा बनाते हो और उसके थ्रू जो है आपके साथ जो है बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जबकि आपके पास जो बैराज है तो उसमें जो है आपके पास जो है जो बॉन्डिंग है, जो बैराज है उसके अंदर आपके पास जो बॉन्डिंग है वो गेट्स के थ्रू होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर आप गेट्स इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इनके अंदर जो है मेन डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन है सर बैराज में ज्यादा वाटर फॉर्म हो सकता है या वियर में। वियर जो है वो स्मॉल स्केल पे होता है और बैराज जो है वो लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है, और उसके अंदर बड़े बड़े गेट्स इंस्टॉल होते हैं। उसके अंदर आप इजीली पानी को जो है आप मैक्सिमम हद तक जो है पानी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जितना आप चाहते हो अपने हिसाब से जो है पानी को जो है आप स्टोर कर सकते हो। जो है तो बैराज के अंदर जो है ज्यादा पानी जो है स्टोर होता है और वियर के अंदर जो है कम पानी जो है स्टोर होता है, ठीक है। रेहान सर स्क्रीन शेयर नहीं हो, स्क्रीन जो है शेयर हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है? ये कुछ लड़के हैं, मैं इनको दोबारा बताता चलूं, ठीक है, कि ये सनाउर रहमान, हमास, नूर सिंह, सुहेल अहमद, साजिद शाह, उमर अली, वाजिद इकबाल, अनीसुर रहमान, मोहम्मद, आगे उसका कुछ नाम नहीं है, समीउल्लाह 196, सफदर हुसैन, जुबैर खलील, सऊद फटक, नवीद खान, उजैर खान, अकील बादशाह, हामिद अयूब, एहसानुल्लाह। इन लड़कों ने जो है अपनी आईडी जो है चेंज नहीं की है, आईडी में अपना नाम जो है चेंज नहीं किया, जिस तरह हमने आप लोगों को बताया था, वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। सो उस वजह से आपके पास जो आपकी अटेंडेंस जो है हमारे पास सही नहीं आ रही, ठीक है।
जिनकी ठीक है तो उनकी हमारे पास आ रही है, तो काइंडली जो है आप अपनी आईडी में जो है अपना नेम जो है सही तरीके से चेंज कर लें, ठीक है। अच्छा ये जिनके मैं नाम ले लिए उनकी ठीक नहीं है, बाकी जो है ठीक है, तो आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, मैंने बता दिए ना, ठीक है। अच्छा अगला टॉपिक है आपका वो है एफ्लक्स। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा कि एफ्लक्स क्या है। द राइज इन द हाईएस्ट फ्लड लेवल अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वेयर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या है? हाईएस्ट फ्लड लेवल, राइज इन द हाईएस्ट फ्लड लेवल। जब आप वेयर को कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, और उसके अंदर फ्लड आता है, तो जितना आपके पास लेवल जो है वाटर का लेवल राइज होता है तो उसको कहते हैं हाईएस्ट लेवल, ठीक है, और उसको एज ए रिजल्ट कहते हैं एफ्लक्स। इन केस ऑफ वेयर द एफ्लक्स कॉज ड्यूरिंग हाई फ्लड्स इज क्वाइट हाई। वेयर के केस में हमारे पास जो एफ्लक्स है वो हाई होता है ड्यूरिंग द फ्लड्स, but in case of barrage the gates can be opened during high floods and efflux will be nil or minimum। जबकि बैराज के केस में हमारे पास जो efflux है वो हमारे पास कम होता है या नील होता है। रीजंस क्या है कि हमारे पास वेयर के केस में हमारे पास क्योंकि सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर से जो है उसको हम रिमूव नहीं कर सकते ताकि हमारे पास जो फ्लड लेवल है वो जो फ्लड वाटर है वो चला जाए। तो एज ए रिजल्ट वो जो आगे पास वेयर कंस्ट्रक्ट है तो उसके साथ ही जो है जमा शुरू होना हो जाता है, ठीक है, तो तब तक वो जमा होता रहता है जब तक वो उसके ऊपर से जो है चला नहीं जाता। तो वहां पर आपके पास जो है ज्यादा पॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो लेवल है फ्लड लेवल है वो राइज हो जाता है, ठीक है। जबकि इन केस ऑफ बैराज हमारे पास जो है चूंकि हमारे पास गेट्स इंस्टॉल होती हैं तो हम गेट्स को जो है ओपन कर लेते हैं, तो जो फ्लड वाटर है तो उससे गुजर जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास जो है वाटर ज्यादा स्टॉक नहीं होता और हमारे पास जो फ्लड लेवल है वो कम रहता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है चॉइस बिटवीन अ वेयर एंड अ बैराज, ठीक है। The choice between a weir and a barrage is largely governed by cost and convenience in working। जो है दोनों, अगर आपके पास चॉइस हो कि आप वेयर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो या बैराज, तो ये जो है लार्जली डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, यानी कि आपके जो है फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ जो है कन्वीनियंस, साथ ही साथ जो है आसानी के ऊपर कि आप इजीली किस चीज को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। A shuttered weir will be relatively cheaper but will lack the effective control possible in the case of a barrage। अगर एक weir आप कंस्ट्रक्ट कर लो, उसके ऊपर जो है शटर इंस्टॉल कर लो, तो वो जो है हमारे पास रिलेटिवली चीपर होता है, लेकिन उसके अंदर जो है किस चीज की कमी होती है, उसके अंदर जो है कंट्रोल, पानी के ऊपर आपकी कंट्रोल जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है इसके अंदर सॉलिड कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, तो एज ए रिजल्ट आगे पास जो है पानी आकर जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है, और ठीक है जितना आप उसको इजीली जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, और जब ज्यादा हो जाता है तो वो उसके ऊपर से जो है बहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जबकि बैराज के केस में जो है क्योंकि गेट्स इंस्टॉल होती है, अगर आपको पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है तो आप गेट्स को खोल देते हो, ठीक है, अगर आपको पानी ज्यादा चाहिए तो आप गेट्स को क्लोज कर देते हो, एज ए रिजल्ट आपके पास जो है पानी जो है ज्यादा होती है। सो आपके पास कंट्रोल जो है वो बैराज के अंदर अच्छा होता है, जबकि वेयर के केस में आपके पास कंट्रोल कम होता है। A barrage type construction can be easily supplemented with a roadway across the river and at a small additional cost। बैराज आप जब कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके अंदर इजी ऑलरेडी जो है जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो आप कंस्ट्रक्ट कर देते हो, तो आप उसके ऊपर जो है आसानी से एक रोडवे या रेल वगैरह को जो है आसानी से गुजार सकते हो अक्रॉस दी रिवर, थोड़े से खर्चे के साथ।
Barrages are almost invariably constructed nowadays on all important rivers. आजकल जो है सारे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके ऊपर जो है हमारे पास हम जो है बैराजेस जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जी अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली पूछें। सर द अटेंडेंस लिस्ट لګو خې مکمل یو منټ ځنه کسان دوی هغه ګوګل آی ډی وزم دا واخلو وګورم بند شو گیا अच्छा टॉपिक से रिलेटेड जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछें। सीधा क्लिक क्लिक बरा का हमें तो वॉइस बंद था लस मुकम्मल लोगो तो यहाँ पर जो है आपका आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली जो है आप 1 बाय 1 जो है आप लीव कर दें। ठीक है, उज़ैर खान जो है आपकी अटेंडेंस जो है मेरे पास नहीं आ रही, आपने जो है अपनी आईडी में अपना नेम चेंज नहीं किया है। ठीक है सर ये थोड़ा ऊपर करे ताकि دا چې چاته کوېشن مارک لګېدلی دی د دې اټینډنس نشته، باقي د نورو ټولو شته دی ها پر وړاندې څه کوئ انیس الرحمان आपकी भी नहीं है। सर वक्ती बेस्ट क्लास बार लगे एक्सप्लेन रहीम का क्या क्वेश्चन है? एफ्लक्स सर दोबारा एक्सप्लेन कर सर, सही समझ नहीं आ रहा है सर। एफ्लक्स का एफ्लक्स मतलब दादे ठीक छो چې हाईएस्ट फ्लड लेवल ठीक छो چې کله تاسو صرف ویر کې تا کنسټرکټ کو یا بیراج تا کنسټرکټ کو ठीक छो نو چې کله په ریور کې دریا کې چې کوم دی تاسو را او بو لیول هاي شي یعنی فلډ راځي ठीक छो نو باغه کیس کې چون کې تاسو را په ویر کیس کې چې کوم تاسو را په ګیټس نه انسټال ठीक छो نو as a result تاسو را چې کوم دی اوور ډیر ریسټور کیږي چې اوور ډیر ریسټور کیږي نو تاسو را چې کوم واټر لیول دی هغه ډیر رائز کیږي as a result چې کوم نه تاسو را چې کوم لیول دی फ्लड लेवल है हाथ असर से हाई छी जबकि बैराज पे केस के मसू को से गेट्स खोलाओ को ठीक है तो जगह फ्लड वो वाटर देगा इजीली रेना क्रॉस को नारी वजह से कम ने मुसरा से कम ने दागे कि कम दागे दे लेवल ले फ्लड लेवल ले आज सिंसरा कम शी क्लियर दे रहे हैं। यस सर क्लियर सर, थैंक यू सर। अच्छा क्लास का टाइम जो है अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 जो है लीव करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सनाउर रहमान का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वियर एंड डैम। ठीक है, डैम सर 079 ला को करे अटेंडेंस शोय करना क्वेश्चन आंसर तो मैं ना बस खबर है दागे की तपोस का वकना चेक सनाउर रहमान। अच्छा डिफरेंस बिटवीन डैम एंड वियर, डैम जो है वो लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, वियर जो है स्मॉल स्केल पे होता है। ठीक है, जो पर्पस है ठीक है नॉर्मली दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों जो है वाटर को स्टोर करते हैं। डैम में जो है आपके पास वाटर जो है स्टोर होता है, वियर में भी स्टोर होता है, लेकिन उसको जो है हम डाइवर्ट करते हैं अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए। ठीक है, जबकि डैम में भी जो है आपके पास वाटर स्टोर होता है और उसको फिर जो है हम अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली डैम जो है वो उसका जो है स्केल जो है वो हायर होता है। ठीक है, जबकि वियर का जो है कम होता है। ठीक है, वियर से जो दूसरा जो डैम है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, वियर से जो है आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी जो है थोड़ी सी डिफरेंस है इसमें।
सर कोर वाले की एक्सप्लेन करिए सर प्लीज। फिलहाल जी जहाँ पर आपके पास हाईएस्ट फ्लड लेवल हो उसको आप एफ्लक्स बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा बशीर अहमद क्या क्वेश्चन है? बशीर अहमद आप चैट में पूछ ले आपका जो क्वेश्चन है। अच्छा कोर वॉल जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके जो है आप जब साइड पे स्लोप देते हो, ठीक है, तो उसको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वहां पर जो है कोर वॉल जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उसको जो है कोर वॉल कहते हैं। नवीद खान आपकी जो है अटेंडेंस मेरे पास आ रही है, लेकिन जो है क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है, यानी प्रॉपर नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको जो है अपनी आईडी को जो है ठीक कर लें, ठीक है। अयाज अली क्रश हेडर जो है कई बार मैं समझा चुका हूँ कि क्रश हेडर जो है हमारे पास स्टील के या वुड के जो है गेट्स होते हैं, जब हम वियर के ऊपर जो है इंस्टॉल करते हैं फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ वाटर। सर ये लेफ्ट थोड़ा ऊपर करो ताकि ऊपर देखे। कमेंट केव्हा का ना यार। अच्छा आप लीव कर ले शाबाश, कि मैं जो है मीट को एंड कर लूं, ठीक है, मैंने इसको सेव भी करना है, शाबाश। सज्जी जमा अटेंडेंस लेके दिले दे 036 अटेंडेंस बदल लगे दिले शाबाश, लीव का वही शाबाश 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 इधर से शाबाश। रिपोर्टिंग بس روح من ريكاردينج بخصوص دايركت خلي فلوس كمان. सर जी प्लीज अमंग अटेंडेंस 100 लगाओ सर जी। सर जी माहौल सही है आईडी। सर क्लास इज फिनिश, काइंडली जो है लीव कर ले क्लास ताकि मैं मीट को एंड कर लूं। सर जी माहौल सही है आईडी। अटेंडेंस हो लगे दो अटेंडेंस बता टूल लगे दले जय शाबाश लीव का वही शाबाश। ओके सर जी।